السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، بہت سے لوگوں کی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ پریمیم پرائز بانڈ رجسٹرڈ کے حوالے سے بھی کوئی ویڈیو بنائیں۔ یہ ہیں کیا، ان کو کس طریقے سے پرچیز کیا جاتا ہے، کس طریقے سے سیل کیا جاتا ہے، کس طریقے سے ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے کویشچنز آ رہے تھے، میں نے کہا چلیں اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے سارے کویشچنز اس کے اندر کور ہو جائیں۔ پریمیم پرائز بانڈ کے ساتھ رجسٹرڈ کا لفظ کیوں لکھا ہوا ہے، پہلے تو ہم آج اس کے اوپر بحث کرتے ہیں۔ پریمیم پرائز بانڈ رجسٹرڈ اس لیے ساتھ لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ آپ کے نام پہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں۔ کھلے عام جس طریقے سے پہلے پرائز بانڈ سیل پرچیز کیے جاتے تھے، گورنمنٹ کو کچھ نہیں پتہ تھا کہ کس کے پاس یہ پرائز بانڈ اویلیبل ہے، بس تب ہی پتہ چلتا تھا جب وہ ان کیش ہوتا تھا۔ اس سے پہلے گورنمنٹ کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ ہمارا پرائز بانڈ کا اونر کون ہے، کس نے ہمارے پرائز بانڈ کے اندر پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے گورنمنٹ نے پہلے والے پرائز بانڈ ختم کر کے یہ پریمیم پرائز بانڈ رجسٹرڈ کے نام سے نئے پرائز بانڈ ایشو کیے ہیں۔ ایکچولی جو پہلے والے پرائز بانڈ ہیں خاص طور پہ کرپشن کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوتے تھے۔ لوگ اپنے کرپشن کے پیسے، اپنے بلیک منی کے پیسے سے پرائز بانڈ خریدتے تھے کم سپیس کے اندر، اور پرائز بانڈ اپنے لاکرز کے اندر، اپنے باکسز کے اندر سیو کر کے رکھتے تھے۔ یہ کم سپیس کے اندر زیادہ ویلیو جو ہے آ جاتی تھی، اس لیے گورنمنٹ نے ان کو بین کیا ہے اور اب پریمیم پرائز بانڈ کے نام سے نیا پرائز بانڈ لانچ کیا ہے۔ یہ پرائز بانڈ کا جو پہلا انعام ہے وہ 8 کروڑ روپے کا ہے، اور دوسرا انعام اس کا 3 کروڑ روپے کا ہے، اور اس کے 3 پرائز ہیں، اور تیسرا انعام اس کا 5 لاکھ روپے کا ہے، اور اس کے 660 پرائزز ہیں۔ اس کے اندر جو دوسرے پرائز بانڈ کے اندر کیا ہوتا تھا کہ اگر آپ کا انعام نکلتا ہے ٹھیک ہے، اگر نہیں نکلتا تو آپ کو اس کے علاوہ کوئی بینیفٹ نہیں دیا جاتا تھا، بس آپ کو پرائز بانڈ کے پیسے واپس مل جاتے تھے۔ اس کے اندر کیا ہے کہ آپ کو 3% سالانہ پروفٹ بھی دیا جائے گا، جو کہ ہر 6 ماہ بعد جو بھی آپ کا پروفٹ اس کا بنے گا وہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ اکاؤنٹ کا کس طریقے سے پتہ چلے گا؟ جب آپ اس کو اپلائی کریں گے تو وہ آپ سے آپ کا اکاؤنٹ مینٹیننس لیٹر لیں گے۔ اکاؤنٹ مینٹیننس لیٹر کے اندر آپ کا انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر لکھا ہوتا ہے، آپ کا اکاؤنٹ کب سے آپریٹ ہو رہا ہے، ایکٹیو ہے، ڈورمنٹ ہے، سارا سٹیٹس اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ اس کو اپلائی کریں گے تو ساتھ اکاؤنٹ مینٹیننس لیٹر بھی لیں گے، تاکہ اسٹیٹ بینک جو ہے اس کی پرائز کی رقم، اگر آپ کا پرائز نکلتا ہے، اور اس کے پروفٹ کی رقم بآسانی آپ کو ٹرانسفر کر سکیں۔ آپ کو کوئی اپلیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا پروفٹ لینے کے لیے کوئی اپلیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پرائز اگر آپ کا ون ہوا ہے اس کے پیسے لینے کے لیے اسٹیٹ بینک خود بخود آپ کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے ٹرانسفر کر دے گا ٹیکس کاٹ کے، اور پرائز آپ کے اکاؤنٹ کے اندر آ جائے گا۔ اس کی میں نے ریکوائرمنٹ آپ کو میں نے بتا دیتا ہوں کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ اس کی صرف آپ کو شناختی کارڈ کی کاپی چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ اکاؤنٹ مینٹیننس لیٹر چاہیے۔ اکاؤنٹ مینٹیننس لیٹر آپ کو بینک سے ایشو کریں گے، کسی بھی بینک کے اندر آپ اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں گے اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے پہلے، اور اس بینک کو کہیں گے مجھے اکاؤنٹ مینٹیننس لیٹر بنا دیں، وہ اکاؤنٹ مینٹیننس لیٹر ساتھ لگائیں گے، اور اگر آپ فائلر ہیں تو فائلر کا سرٹیفکیٹ ساتھ لگائیں گے اور اپلائی کر دیں گے۔ اس کے سیلینٹ فیچرز کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ ان میں سے موسٹلی جو فیچرز ہیں میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیے ہیں۔ پروفٹ ریٹ اس کے اوپر جو ہے وہ 3% اینولی کے حساب سے آپ کو لگے گا، اور اس کی ڈینومینیشن کیا ہے، یہ صرف اور صرف 40,000 روپے کے اندر ابھی اویلیبل ہے۔ کل اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، فردر ڈینومینیشنز کے اویلیبل ہوں گے، لیکن ابھی فی الحال صرف 40,000 کا اویلیبل ہے۔ رجسٹرڈ صرف انویسٹر کے نام پہ ہوگا، جو آ کے آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور اس کے جو ہے ہر کوارٹر کے جو ہے اس کی ڈرا ہوتا ہے، یعنی کہ ہر 3 مہینے بعد 1 سال کے اندر 4 ڈراز ہوتے ہیں اس کے، اور اس کے اندر انڈیویجولز، پبلک، پرائیویٹ سیکٹر انسٹیٹیوشنز سارے جو ہیں وہ اپنا انویسٹ کر سکتے ہیں۔
डायरेक्ट क्रेडिट ऑफ प्राइज मनी एंड प्रॉफिट इन इन्वेस्टर्स बैंक। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि कोई फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जो है इसके प्राइस जो है आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाया करेगी। और हाईएस्ट जो प्रॉफिट है, इसका हाईएस्ट जो इसका प्राइस है वो है 8 करोड़ रुपया, और इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितनी देर तक मर्जी आप अपने पास रखें। अगर आपका प्राइस नहीं निकलता तो आपको प्रॉफिट आपके अकाउंट के अंदर आता रहेगा। विद होल्डिंग टैक्स इसके ऊपर लगेगा, जो भी गवर्नमेंट का असाइंड रेशो होगा वो इसके ऊपर लगेगा। प्राइस के ऊपर अलग सेक्शन के थ्रू विद होल्डिंग टैक्स लगता है, और प्रॉफिट के ऊपर अलग विद होल्डिंग टैक्स जो है वो सेक्शन के थ्रू लगता है। तो जो भी जिस तरीके से आपको रकम ट्रांसफ़र होगी उसके अगेंस्ट आपको जो है वो टैक्स कटेगा। इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। प्लेजेबल क्या होता है? प्लेजेबल, अगर आप अपने पास प्राइस बॉन्ड रखना भी चाहते हैं और आपको पैसे भी चाहिए, तो क्या होगा कि आप इसको किसी भी बैंक के अंदर रखवा के इसके अगेंस्ट आप लोन भी ले सकते हैं, तो इसको प्लेजेबल कहा जाता है। तब आपके पास प्राइस बॉन्ड भी रहेगा और आप अपनी जो है वो लोन लेके अपनी ज़रूरत भी पूरी कर सकते हैं। इसको कैश के ज़रिए, चेक के ज़रिए, पे ऑर्डर के ज़रिए परचेज़ किया जा सकता है। और इसको परचेज़ करना कहाँ से है? ये तो स्टेट बैंक की सारी ब्रांचेस से इसको ये आप परचेज़ कर सकते हैं। साथ इन्होंने दूसरे बैंक्स की ब्रांचेस के साथ भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। आप उन ब्रांचेस में भी एप्लीकेशन दे के ले सकते हैं। उन ब्रांचेस की डिटेल ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये देख लें आप। इन ब्रांचेस की डिटेल ये है, आप ये देख लें। ये सब ब्रांचेस हैं जिनसे आप ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे, कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि इसकी सबसे पहले व्हाट इज़ प्रीमियम प्राइस बॉन्ड। प्रीमियम प्राइस बॉन्ड क्या है? एक्चुअली इसको इसलिए प्रीमियम कहा गया है क्योंकि इसके अंदर प्राइस तो मिलता है, साथ आपको प्रॉफिट भी मिलता है अगर आपका प्राइस नहीं भी निकला। व्हाट आर द डिनोमिनेशंस ऑफ प्राइस बॉन्ड? प्राइस बॉन्ड की डिनोमिनेशन क्या है? इसकी अभी डिनोमिनेशन सिर्फ 40,000 है। 40,000 के अलावा कोई डिनोमिनेशन नहीं है, लेकिन फ्यूचर के अंदर इसकी और डिनोमिनेशंस आने के चांसेस हैं। व्हाट इज़ द प्रॉफिट रेट ऑफ प्रीमियम प्राइस बॉन्ड? इसका 3% एनुअली जो है इसका प्रॉफिट दिया जाता है। जैसे व्हाट इज़ द मीनिंग द टर्म रजिस्टर्ड इन प्रीमियम प्राइस बॉन्ड? प्रीमियम इसको रजिस्टर्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपके नाम पे ये रजिस्टर्ड होता है। कितने ड्राज होते हैं एक साल में? 4 ड्राज होते हैं एक साल में। कौन ले सकता है? इंडिविजुअल्स ले सकते हैं, कॉर्पोरेट लोग ले सकते हैं। हाउ कैन आई क्लेम माई प्राइज मनी? आपको कोई एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। आप प्रॉफिट किस तरीके से क्लेम करेंगे? आपको कोई एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आपका खुद ब खुद आपके अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। कैन आई ट्रांसफ़र माई प्रीमियम प्राइस बॉन्ड टू एनीवन? क्या मैं किसी को भी अपना ये प्राइस बॉन्ड ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? जी, आप किसी को भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन उसके नाम पे भी रजिस्टर्ड होगा। कैन आई प्लेज माई प्रीमियम प्राइस बॉन्ड? क्या मैं इसके अगेंस्ट लोन ले सकता हूँ? जी, आप ये बैंक में रखवा के इसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं। कोई इसकी इन्वेस्टमेंट की टर्म टाइम है, आप जितनी देर तक मर्ज़ी आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई इसकी टाइम लिमिट नहीं है। कितने में परचेज? हाउ कैन आई परचेज प्रीमियम प्राइस बॉन्ड? किस तरीके से मैं इसको परचेज कर सकता हूँ? मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि स्टेट बैंक की सब ब्रांचेस से और जितने दफातर हैं उनसे ले सकते हैं, और स्टेट बैंक ने दूसरे बैंक्स के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, और वो उनकी कुछ ब्रांचेस जो हैं आपको ये प्रीमियम प्राइस बॉन्ड इशू कर सकती हैं। व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रीमियम प्राइस बॉन्ड परचेज? जैसा मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, टैक्स फाइलर का है तो उसका सर्टिफिकेट, और CNIC डिटेल ऑफ द नॉमिनी। नॉमिनी की जो है ना वो CNIC डिटेल चाहिए। इज़ देयर एनी फैसिलिटी फॉर सीनियर सिटीजन एंड फीमेल्स?
फीमेल्स और अगर सीनियर सिटीजन्स ये लेने जाते हैं तो तब उनको कोई फैसिलिटी दी जाती है या नहीं दी जाती। उनके लिए स्पेशल क्यू में लगने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट जो है जाके उसकी पेमेंट ले सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आर सेम फॉर इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट, दोनों के लिए क्या एप्लीकेशन फॉर्म सेम है? नहीं, दोनों के लिए अलग-अलग हैं। टैक्स इज़ एप्लीकेबल ऑन प्रीमियम प्राइस बॉन्ड, टैक्स क्या लगता है प्रीमियम प्राइस बॉन्ड पे? जी, टैक्स ज़रूर लगता है इसके ऊपर। इस ज़कात एप्लीकेबल ऑन प्रीमियम प्राइस बॉन्ड, ज़कात इसके ऊपर लगती है या नहीं लगती? ज़कात इसके ऊपर नहीं लगती। व्हाट इज़ द हाईएस्ट प्राइस ऑफ प्रीमियम प्राइस बॉन्ड? 80 मिलियन, 8 करोड़ पे इसकी हाईएस्ट प्राइस, जो इसका जो प्राइस है अगर किसी का निकलता है। इसको सब आपने अप्लाई क्या करना है? इसके 3 फॉर्म है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये वाला फॉर्म है, इसके लिए सबसे पहले आपको एक रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। आप रजिस्टर्ड के अंदर अपनी सारी डिटेल्स देंगे, अपना CNIC, अपने सारा जिस तरीके से अकाउंट हो, आपका एक मुकम्मल सिर्फ बनेगा जिसके अंदर आपकी ये सारी डिटेल ली जाएगी। आप इसको फॉर्म को फिल करेंगे, अपना अकाउंट की डिटेल देंगे, सारे जो है ये सिंगली भी ले सकते हैं, जॉइंटली भी ले सकते हैं। आपने इस फॉर्म के अंदर डिटेल देनी है। सबसे पहले इसको PPB CB फॉर्म 1 भी कहा जाता है। फिर आप ये है रजिस्ट्रेशन होने के लिए, आप यानी कि अपना अकाउंट उसके अंदर एक किस्म का बना रहे हैं। फिर आप क्या कहते, आपके ये वाला फॉर्म इस्तेमाल होगा आपको परचेज़ करने के लिए। आप रजिस्टर्ड एक ही मरतबा होंगे और परचेज़ आप अगर मुख्तलिफ टेन्योर्स के अंदर करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म के अंदर जो इस फॉर्म के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। जैसे अभी आप सिर्फ 2 प्राइस बॉन्ड लेना चाहते हैं तो आप पहले रजिस्टर्ड हो जाएंगे, फिर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू 2 प्रीमियम प्राइस बॉन्ड अप्लाई करेंगे। बाद में अगर आप दोबारा 10 प्रीमियम प्राइस बॉन्ड और लेना चाहते हैं तो आपको दोबारा रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है, आप इस फॉर्म के थ्रू ही बस परचेज़ कर सकते हैं। और ये वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आप अगर इनकैशमेंट करवाना चाहते हैं, अपना प्राइस बॉन्ड के पैसे लेना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू अपने जो है वो प्राइस बॉन्ड के पैसे और इनकैश करवा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और बहुत आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुई होगी और बहुत अच्छा ये चीज़ है। हमें ये ज़रूर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आप लोगों के पास इजाफी पैसे हैं तो आप इसके जो है इसके अंदर आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आसानी से इसके अंदर से निकलवा सकते हैं। अपनी किस्मत को ज़रूर आजमाना चाहिए। अपना और अपनी फैमिली वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर मोटिवेट कीजिएगा। मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।